Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel Physics Insight. Today in this video we are going to discuss some facts related to refraction of light. So students, जब भी कोई light किसी surface के ऊपर पड़ती है तो simultaneously three phenomena occur. The first phenomena is reflection of light. Some part of the light gets reflected back in the same medium and some amount of light moves to the other medium, which is called refraction of light. And the third phenomena is absorption of light. Medium absorbs some light. Okay. So आज हम इन तीनों में से refraction of light के ऊपर फोकस करेंगे. So चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं what is refraction of light and how many other phenomena are linked to it. Okay. So सबसे पहले हम बात करेंगे refraction of light की definition के बारे में. So what is meant by refraction of light? Refraction of light means bending of light when it moves from one medium to another. Okay. अब ये लाइट बेंड क्यों होती है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, और वो जो नेचर ऑफ मीडियम है दैट इज बेस्ड ऑन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड व्हाट डज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स? Refractive index tells us about the optical density of a material. Okay, so अगर refractive index को हमें define करना हो तो what does that refractive index indicates? You can say that refractive index is defined as the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So this is called refractive index of a material with respect to air, or you can say that vacuum. Some books indicate this by symbol mu and some books indicate with the symbol n. So both are correct. No need to get confused. Okay. Moreover, the term refractive index is having no units. Why it has no units? Because in numerator you are dividing velocity with the velocity. So the units of velocity will cancel out with the units of velocity. So hence you will get no net units. Okay. So next, on the basis of this refractive index, we can distinguish our medium whether the medium is rarer and denser. So देखते हैं कैसे. Rarer medium वो medium होगा जिसका जो refractive index है वो कम होगा. When refractive index of medium is less, this medium is called rarer medium. और जिस medium का refractive index ज़्यादा होगा उस medium को हम बोलेंगे denser medium. And one more thing I want to tell you, in rarer medium speed of light is more as compared to denser medium. So in denser medium speed of light is less as compared to rarer medium. Okay. So इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टोल्ड यू टू रन इन वाटर एंड देन आई टोल्ड यू टू रन इन एयर, तो आप सबसे ज़्यादा तेज़ किस में दौड़ोगे? क्लियरली आप एयर में सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे क्योंकि वो मीडियम डेंस नहीं है. एंड इन वाटर व्हेन यू विल रन योर स्पीड विल बी स्मॉल एज कम्पेयर टू एयर. सो सेम इज़ द बिहेवियर ऑफ लाइट. ओके. अब हम चेक करेंगे कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उसमें रे की बेंडिंग होती है, तो वो बेंड किस डायरेक्शन में करती है. अब हम उस पर बात करते हैं. देखिए हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, वन इज़ रेयर मीडियम एंड वन इज़ डेंसर मीडियम. When your ray of light is coming from rarer to denser medium, it will bend towards normal. अगर हमारी ray of light denser से rarer medium में जा रही है, it bends away from normal. Let's see diagrammatically. देखिए, इफ दिस इज माई इंटरफेस, ये मेरे पास एयर है और नीचे मेरे पास वाटर है. ओके. इफ आई इंसिडेंट अ रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली ऑन द इंटरफेस, व्हाट हैपन्स? नाउ आई नीड टू टेल यू वेयर डज दिस रे विल गो, वेदर इट विल बेंड टुवर्ड्स राइट और वेदर इट विल बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट. सो अब देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ओके. नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी. दिस नॉर्मल इज नथिंग बट जस्ट द
परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब क्या होगा, ये जो रे है इसका एक्चुअल पाथ क्या है, इसका एक्चुअल पाथ ये है विच इट शुड फॉलो. नाउ एज योर रे इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एयर इज रेयर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी. अब हम देखते हैं कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है फिर क्या होगा. सी, दिस मीडियम इज वाटर एंड दिस मीडियम इज एयर. नाउ आई कंसीडर दैट आई एम इंसिडेंटिंग द लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब मुझे ये बताइए मेरी ये जो रे ऑफ लाइट है वेदर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब देखिए क्योंकि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है तो नेचुरली इफ दिस इज द पाथ ऑफ रे, सो इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ एंड इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये मेरी नॉर्मल है तो ये मेरा एक्चुअल पाथ है रे ऑफ लाइट का, तो ये अब नॉर्मल से दूर बेंड करनी चाहिए. सो ये रे नॉर्मल से दूर बेंड करनी चाहिए. नाउ इट हैज़ बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइट रे बेंड क्यों हुई, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन. इसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स. ये हमने अभी भी डिस्कस किया दैट रेयर मीडियम में जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है और डेंसर में जो स्पीड है वो कम होती है. सो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम या ज़्यादा होती है. और वी नो दैट स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल. ठीक है, तो अब देखिए जो रेयर मीडियम है, सपोज मैं फर्स्ट ये ले लेता हूँ अपना केस कि मेरी जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है. सो इफ माई रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हाट इज हैपनिंग, द वेलोसिटी ऑफ रे इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम. तो जैसे ही वो डेंसर में जाएगी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी. अब अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो क्या होगा, अपनी डिस्टेंस और टाइम की रेशो को एडजस्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको छोटा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा. मीन्स डिस्टेंस शुड रिड्यूस्ड. अब उसको छोटा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा सो दैट ये जो आपकी डिस्टेंस टाइम की रेशो है वो कांस्टेंट रहे. तो वो छोटा रास्ता ढूंढने के चक्कर में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है ताकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ ओबे कर सके फॉर ट्रैवलिंग. अब हम बात करते हैं कि जब मेरी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ इस वाले की, कि अगर मेरे पास एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है तो डेंसर में उसकी स्पीड कम है और रेयर में उसकी स्पीड ज़्यादा है. तो अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट कोई ऐसा रास्ता ढूंढेगी जो लॉन्ग होगा मीडियम से बाहर आने के लिए. ओके, सो रे ऑफ लाइट विल फॉलो द लॉन्गर पाथ in order to maintain the distance time ratio. so इसलिए ये जो ray of light है वो bend कर जाती है. next is refraction through a glass slab. अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं क्या करूँगा, अपनी ग्लास स्लैब को नेम दे देता हूँ, दैट इज PQ कैपिटल R एंड कैपिटल S. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक. अब इसमें क्या है, ग्लास स्लैब सबको पता है क्या होती है, एक क्यूबॉइडल शेप ग्लास की प्लेट होती है जिसके आर पार आप देख सकते हो. ओके, अब क्या है, उसके एक इंटरफेस पे मैं लाइट रे इंसिडेंट कर देता हूँ. अब इसी इंटरफेस पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ. जब मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करी है तो अब क्या होगा, अब ये रे कहाँ जानी चाहिए, अब बाहर है मेरे पास एयर, अंदर है मेरे पास ग्लास, तो दिस रे शुड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. मतलब अगर ये इसका एक्चुअल पाथ है तो इसको नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाना चाहिए. तो अगर ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है तो ये यहाँ पे इस इंटरफेस पे फॉल करेगी. नाउ वी विल मेक अनदर नॉर्मल ऑन दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो ये मैंने एक नॉर्मल बना दी है. अब मेरी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर में जाना चाहती है. सो वेयर डज इट विल गो, इट विल फॉलो दिस पाथ एंड बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी ये जो लास्ट में रे आपके पास आई है दिस इज कॉल्ड एमरजेंट रे, और जो आप इंसिडेंट कर रहे थे इंसिडेंट रे, इन दोनों को एक्सटेंड कर देता हूँ. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों रेस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं. तो इन दो पैरेलल रेस के बीच में कुछ गैप है, देयर इज गैप बिटवीन दीज पैरेलल रेस. सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डेविएशन. ओके,
सो दिस इज कॉल्ड लेटरल डेविएशन. अब ये जो रे आपने इंटरफेस पे डाली थी, दिस इज नेम्ड एज इंसिडेंट रे, और जो एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज माय नॉर्मल, दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, and this is my emergent ray. Okay, so this is how refraction takes place through a glass slab. Now we are proceeding to the next topic, in which we will discuss that we are having some cases in which no refraction takes place. So we are going to discuss those. See, we are having two cases. In the first case, what I have to do, I am just incidenting a ray of light normal to the surface. Normal to the surface means angle of incidence is 0 degree, but angle of incident ray with the surface is 90 degree, and moreover what will happen, the ray will go straight without bending, so there will be no refraction. Now in the second case, if you are having two mediums A and B and you are now falling ray obliquely on the surface, now angle is not 90 degree. How ray, what will be the condition that ray should go straight without bending? So एक ही केस हो सकता है कि अगर आपका जो मीडियम A है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम B के इक्वल हो जाए, तो उसमें क्या होगा, फिर बोथ द मीडियम्स विल बिहेव एज अ कॉन्टिन्यूस मीडियम, और जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड नहीं होगी एंड इट विल पास विदाउट रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट कर रहे हैं. अब हम उसको डिस्कस करेंगे. सो माय फर्स्ट फैक्टर विच इज इफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. ओके, अब देखो, अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी, if speed of light is more, the medium is what? The medium will be rarer. अगर speed of light कम हो जाएगी, then medium will be dense. Okay, so second factor is my temperature. अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम के ऊपर, कि अगर मेरे पास एक मटेरियल है जिसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया एडिशनली एक्सटर्नल हीट सप्लाई करके. अब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं इन डेंसर मीडियम, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. आफ्टर गेनिंग एनर्जी दे विल स्टार्ट मूविंग अवे, और एक मटेरियल जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी पार्टिकल्स की, वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे दूर दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, योर डेंसर मीडियम विल बिकम रेयरर. ओके, सो मीन्स इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, refractive index will decrease. So temperature and refractive index both are inversely proportional to each other. Now the third factor, which is a factor of wavelength of light. So clearly if wavelength of light is more, then refractive index is small. अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है वो बेंड कम होगी, अगर बेंड कम हो रही है तो हमारे पास जो मीडियम है वो क्या है, रेयर मीडियम है. एंड वी विल ऑब्जर्व दिस थिंग व्हेन वी विल डिस्कस डिस्पर्जन इन द एंड. सो उसके बाद ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे. अब सबसे पहले है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. अब we will define what is the definition of prism. Simple है, prism is nothing but just you can say 3D object in which two identical faces are placed opposite to each other, which are and these two opposite faces which are placed face to face, these are called bases, and rest all the sides of prism are rectangular in shape or in parallelogram in shape. And moreover the base of prism, it can be triangular, it can be square, it can be rectangle or any other polygon, but all the other faces of prism will be either rectangular in shape or in parallelogram shape. If the angle of each side is 60 degree, then such kind of prism is called regular prism. So अब इसकी refraction को identify करने के लिए, और you can say in order to explain refraction through prism, what we are doing, we are drawing the front face of prism and we are falling incident ray on it. सो इंसिडेंट रे अब कैसे बेंड करेगी, किधर बेंड करेगी, वो डिसाइड करने के लिए हमें इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. नाउ एज आउटसाइड इज एयर एंड इनसाइड
material of prism is glass, so light ray will bend towards normal, वो नीचे की तरफ bend कर जाएगी. Okay, now on this surface again at the point of incidence we are drawing a normal. What happened now? Where will the ray go? Now ray is coming from denser to rarer medium, so it will bend away from normal, नीचे की तरफ bend कर जाएगी. और refraction कैसे हुई प्रिज्म में? प्रिज्म refracted beam towards base. ओके देख सकते हो प्रिज्म में रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रे ऑफ लाइट है, जो आपके इमर्जेंट रे है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द बेस. ओके, वो टुवार्ड्स द बेस बेंड कर देता है आपकी लाइट को. अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें एंगल ऑफ डेविएशन की. ये अगर मैं इस इंसिडेंट रे को पीछे एक्सटेंड करूं, सो इट विल फॉलो सच काइंड ऑफ पाथ. एंड अगर मैं इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ फॉलो करूं, व्हाट विल हैपन? The point where they will intersect and the angle between them is delta. So this delta is called angle of deviation. अब ये angle of deviation क्या इंडिकेट करता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कितना बेंड हो रही है रिफ्रैक्ट करने के बाद. दैट इज बीन इंडिकेटेड बाय द एंगल ऑफ डेविएशन. और जब भी आपके पास रिफ्रैक्शन होगी प्रिज्म में से, तो हमेशा प्रिज्म फॉर्मूला होल्ड हो रहा होगा. एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस. कोई भी केस हो फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस लॉ शुड होल्ड ट्रू. ओके, व्हेनेवर द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म टेक्स प्लेस, दिस लॉ इज ऑलवेज होल्डिंग ट्रू. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन. सो हाउ एंगल ऑफ deviation delta for a prism is going to affect. What are the factors? So first factor for the dependence of delta is refractive index. जो refractive index of prism है वो directly proportional होगा delta के. why? क्योंकि हम सब जानते हैं अगर मीडियम ज़्यादा dense होगा, means if refractive index is more, what will happen? The incident ray will bend more. If bending is more, angle of deviation is more. So automatically mu is directly proportional to delta. That is angle of deviation. So angle of deviation is directly proportional to refractive index. Now my second case is, or you can say second factor is angle of prism. So this angle of prism is directly related with angle of deviation. So बच्चे इसका कोई theoretical proof नहीं है. जब आप practically different prisms के साथ एक ही angle of incidence पे ray diagrams plot करते हो, तो जो angle of prism है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी डेविएशन अपीयर होने लग जाती है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा रहे हो वैसे वैसे डेविएशन जो है सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वो भी बढ़ रही है. सो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द थर्ड फैक्टर विच इज वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं. देखो, जब भी हमने डिस्पर्जन को ऑब्जर्व किया है तो हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म के ऊपर लाइट रे फॉल करते हैं और वो फर्दर 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. और लोअर 1 कलर इज वायलेट एंड द अपर मोस्ट कलर इज रेड. सो नीचे वाले का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर और रेड का जो वेवलेंथ होता है ये होता है 750 से 800 नैनोमीटर के बीच में. ठीक है, तो जैसे जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है. बट आपने क्लियरली ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो टॉप मोस्ट कलर होता है ना वो सबसे कम बेंड करता है और वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड करता है. सो मीन्स if more bending is there, which means refractive index is more. If less bending is there, means refractive index is less. So if wavelength is increasing, your refractive index should reduce. So automatically both of these are inversely related to each other. If rarer will be the medium, more will be the wavelength, lesser will be the bending of light. Okay, so delta जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. अब जो नेक्स्ट फैक्टर हमारा फोर्थ फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है टेम्परेचर का. अब टेम्परेचर से डेल्टा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखो, अगर मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ प्रिज्म का, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो क्या होगा, जो प्रिज्म का मटेरियल है दैट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ रेयर मटेरियल. वाई? बिकॉज दैट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ रेयर मीडियम. वाई? बिकॉज जो उस मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं आफ्टर गेटिंग heat energy, that heat energy will be converted into kinetic energy of molecules और वो जो molecules हैं एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे और वो जो मीडियम है एज अ रेयर मीडियम एक्ट करना स्टार्ट कर देगा.
सो जो टेम्परेचर है आपका, अगर मीडियम रेयर होगा तो बेंडिंग क्या होगी, लेस होगी। सो जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो जो डेविएशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मीडियम रेयर हो जाएगा। सो टेम्परेचर एंड डेविएशन बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। माय फिफ्थ फैक्टर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी आर ऑब्जर्विंग, सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी आर ऑब्जर्विंग। सो इसमें जो मिनिमम एंगल होता है ना, ये मिनिमम एंगल, इसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और क्लियरली आप देख सकते हो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, पहले जो डेल्टा है वो कम हो रहा है, बट स्टिल आफ्टर दैट डेल्टा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप स्टार्टिंग से बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, डेल्टा पहले कम होगा और मिनिमम डेविएशन पे आने के बाद अगर आप फिर से आई बढ़ा देते हो तो जो आपका डेल्टा है वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस काइंड ऑफ कर्व observed between angle of deviation and various angle of incidences. Now we are going to discuss the phenomena of total internal reflection and critical angle. Now for you can say explaining total internal reflection, we will have to assume some things. First assumption is that the ray of light is coming from denser to rarer medium. और सेकेंड जो पॉइंट है उसमें क्या होता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी इक्वल टू, दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अभी जो क्रिटिकल एंगल है इसका क्या कंसेप्ट है वो भी देखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दिस मीडियम इज रेयरर एंड दिस मीडियम इज डेंसर। सो आपका जो ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट आ रही है दैट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। सपोज यहाँ से आपकी लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मेरी जो रे ऑफ लाइट है डेंसर टू रेयर आ रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगेन आई एम चेंजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या हुआ, रे फिर इधर निकल गई। आगे चला जाऊंगा थोड़ा और, तो जो आपकी रे है दैट विल गो पैरेलल टू द सरफेस। सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी आपकी इंसिडेंट रे और उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज नेम्ड एज क्रिटिकल एंगल। So critical angle is defined as the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. Here angle of refraction is 90 degree. Okay. If you will further increase the incident angle from this critical angle, what will happen? Your ray will go back in the same medium without going out. So this phenomena of reflection of light when source of light is in denser medium and the angle of incidence is greater than critical angle is called total internal reflection. This phenomena is called total internal reflection. तो अब हम next बात करेंगे रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो ये करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे पास दो लॉज है रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ इज सिंपल कि इंसिडेंट रे जो है अपनी वो नॉर्मल रे एंड एमरजेंट रे, ऑल दीज रेज शुड लाई इन सेम प्लेन। और जो सेकंड लॉ है मेरा जिसको मैं बोलता हूँ स्नेल्स लॉ, वो मुझे बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट आनी चाहिए, विच शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अब क्या होगा, refractive index is equal to what, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, and this refractive index is written as, देखो अब ये जो लाइट रे है हमारे पास कहाँ से जा रही है, ये जा रही है डेंसर टू रेयर। सो डेंसर टू रेयर मेरी जो रे ऑफ लाइट है वो जा रही है। हेयर द इनिशियल पाथ विल कम, हेयर द फाइनल लोकेशन विल कम। ओके, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। सो अब क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सो इस रिलेशन से आपको क्या मिला, डी अपॉन आर आपको मिल गया साइन सी अपॉन साइन 90। सो साइन 90 इज 1, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डी टू आर इज इक्वल टू साइन सी। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट स्टेट्स दैट कि अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे भेज रहे हो लाइट की, सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर सामने उसके मिरर रख दोगे आप, तो वो जो रे ऑफ लाइट आपके पास आ रही है वो एग्जैक्टली सेम पाथ ट्रेस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाती है. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. एंड इसका जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे होता है, ये जो हमने लिखा था ना म्यू डी टू आर, कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हेन इट विल गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सो अगर मुझे इसको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ रेयर टू डेंसर, सो आई विल राइट इट एज 1 अपॉन आर टू डी इज इक्वल्स टू साइन सी, और यू कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यू कैन से रेयर with respect to air, so it will come out to be 1 upon sin c. So this is the relation between refractive index and critical angle. Now we are going to discuss next real and apparent depths. So before starting this, let's observe this diagram. Say a person is watching the depth of swimming pool. अगर इस पूल के अंदर मैं पानी ना भरूं तो जो आपकी डेप्थ है स्विमिंग पूल की फ्रॉम द सरफेस एट विच यू आर सिटिंग, द डेप्थ इज कॉल्ड रियल डेप्थ. एंड उसके बाद अगर मैं उसको पानी से फिल कर दूं या किसी और लिक्विड से फिल कर दूं तो उसका जो फ्लोर है ना वो रेज्ड अपीयर होने लग जाता है, और फिर जो डेप्थ हमें अपीयर होगी दैट इज कॉल्ड अपैरेंट डेप्थ, जो कम होती है एज कंपेयर टू रियल डेप्थ. ओके, सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑफ रियल एंड अपैरेंट डेप्थ. तो अब जो रियल डेप्थ है, अपैरेंट डेप्थ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तीनों एक दूसरे से कैसे इंटररिलेटेड है वो देखेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ. अब और ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है इसको हम नाम देंगे शिफ्ट का. और जब हम शिफ्ट निकालेंगे तो शिफ्ट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है रियल डेप्थ में से हम अपैरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे, सो देन वी विल गेट द शिफ्ट. ओके, ये मेरे पास रियल डेप्थ है ऊपर से लेके नीचे तक, और इसमें से अगर मैं इस अपैरेंट डेप्थ को माइनस कर दूं देन आई विल गेट शिफ्ट. सो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना देके सिर्फ रियल और अपैरेंट डेप्थ दी गई है तो आप शिफ्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो. अगर आपको अपैरेंट डेप्थ क्लियरली नहीं दी हुई, सिर्फ आपको शिफ्ट दिया हुआ है एंड यू नीड टू इवैल्यूएट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो उसको निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. वन फॉर्मूला ऑफ शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, and in terms of refractive index the formula of shift is this: real depth in bracket 1 minus 1 upon refractive index. So both of these formulas are useful for you to evaluate the shift. Okay, तो अब मैं आपको इन दोनों के बेसिस पे एक एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं so that आपको ये पता चल जाए कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं. So फर्स्ट केस के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं कि जो मेरी डेप्थ है स्विमिंग पूल की, depth of pool is 2 meter and refractive index of water with respect to air means ये refractive index of water with respect to air is given as 4/3. अब उसके बाद आपको दिया हुआ उसने कि अपैरेंट डेप्थ निकालो इसकी. सो सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, सो इट इज इक्वल टू, नाउ रियल डेप्थ इज 2 मीटर एंड अपैरेंट डेप्थ यू नीड टू इवैल्यूएट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, सो इट विल बी इवैल्यूएटेड एज 4/3 इज इक्वल्स टू 2/x. सो x comes out to be 3/2 or you can say that 1.5 meter. So the floor appears to be raised to you at 1.5 meters. So ये अब शिफ्ट अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? शिफ्ट आपके पास कितनी आएगी? शिफ्ट आपके पास आएगी 0.5 की, मीन्स रियल डेप्थ में से जब आप अपैरेंट डेप्थ को माइनस करोगे तो आपका शिफ्ट आती है 0.5 की. अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको और देता हूं, उसमें मैं आपको अपैरेंट डेप्थ नहीं दूंगा, आपको मैं सिर्फ दूंगा रियल डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो आपको जो है शिफ्ट निकालनी है. सो हाउ विल यू डू दैट? अ पोस्टेज स्टैम्प appears to be raised by 7 mm when appears
when appeared through glass slab of refractive index 1.5, आपको थिकनेस निकालनी है स्लैब की. फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब मीन्स रियल डेप्थ निकालनी है. अब सिचुएशन क्या है वो ध्यान से समझो. ये मेरे पास स्लैब है, स्लैब के नीचे मैंने एक टिकट रखी हुई है, मुझे ये उसकी थिकनेस निकालनी है. मीन्स टिकट से लेके टॉप सरफेस तक का फॉर्मूला निकालना है. मीन्स मुझे रियल डेप्थ निकालनी है और मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दैट इज 1.5. तो ये कैसे निकलेगा, याद करो वही फॉर्मूला. शिफ्ट किसके इक्वल होगी, रियल डेप्थ चाहिए तो शिफ्ट आपको कितनी दी हुई है, शिफ्ट इज गिवन टू यू 7 mm. तो शिफ्ट किसके इक्वल होगी, अब शिफ्ट होगी रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1/1.5 के इक्वल. सो योर रियल डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट, 7 mm इंटू 1.5/0.5. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चेक करिए कि आपके पास रियल डेप्थ कितनी आ रही है. So real depth which you will observed will be approximately equal to 21 mm. रियल डेप्थ आपको 21 mm दिखाई देगी. सो जो रियल डेप्थ है आपकी वो 21 mm है. सो दिस इज हाउ वी टैकल द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रियल एंड अपेरेंट डेप्थ. उसके बाद देखिए एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि जो इस फैक्टर से, इस फॉर्मूला से ही क्लियर है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपेरेंट डेप्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें जो अपेरेंट डेप्थ आएगी वो ज़्यादा आएगी. बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेंसेज के बारे में. सो व्हाट इज लेंस अकॉर्डिंग टू यू, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय 2 कर्व्ड सरफेस, और उसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड हमने फिल किया होता है. ठीक है, सो दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड लेंस. ओके, सो लेंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं. एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस. जो कन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं. कन्वर्जिंग लेंस क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं एक लेंस के ऊपर, कन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो वो उसको फोकस के ऊपर कन्वर्ज कर देता है. इट फोकसेस ऑल द रेज ऑन फोकस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. और कनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. क्यों डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि अगर जो पैरेलल रेज मेरे पास आ रही हैं एक लेंस के ऊपर, कनकेव लेंस के ऊपर, तो ये सारी की सारी रेज को डाइवर्ज कर देगा. और ये देखने में कैसे होते हैं, कनकेव लेंस इज ऑफ दिस टाइप एंड कन्वेक्स लेंस इज ऑफ दिस टाइप. अच्छा, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट एंड सेकंड फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है. अब देखिए यहां पे 2 बार फोकस यूज किया गया है, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस. क्या सच में एक लेंस के पास 2 फोकस होते हैं? यस, बिकॉज सी, एक लेंस के पास 2 कर्व्ड सरफेस हैं. फर्स्ट कर्व सरफेस इज दिस वन एंड सेकंड कर्व्ड सरफेस इज दिस वन. तो हर एक कर्व्ड सरफेस के लिए एक फोकस होगा. सो अगर ये सरफेस कंसीडर करें तो इस सरफेस के लिए फोकस हमारे पास यहां मिलेगा, और अगर ये सरफेस हम कंसीडर करें इसके लिए फोकस हमें यहां मिलेगा. तो अब इन 2 फोकसेस में से आप मुझे बताएंगे कि विच वन इज फर्स्ट फोकस एंड विच वन इज सेकंड फोकस. सो ये जो फोकस है आपका, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड फोकस. अच्छा, अब देखते हैं फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस कौन सा है. अब जिस फोकस के पास आप अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, मतलब ये फोकस, उस फोकस को हम नाम देंगे फर्स्ट फोकस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ओनली. कन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फोकस कौन सा होता है, वो फोकस जिसके पास हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया होता है. ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट जो फोकस होगा इन कन्वेक्स लेंस, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस. और जो दूसरी साइड पे फोकस होगा कन्वेक्स लेंस के अदर देन ऑब्जेक्ट साइड, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड फोकस. अब कनकेव लेंस के अंदर क्या होता है, ये सिचुएशन रिवर्स होती है. सो दिस इज द कनकेव लेंस. सो इसके अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो आपका जो फर्स्ट फोकस होगा वो ये कंसीडर होगा. ठीक है, कन्वेक्स के अंदर दिस इज फर्स्ट फोकस एंड इन कनकेव दिस इज सेकंड फोकस. ओके, अब आपको ना एक चीज पूछी जाती है कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को लोकेट करना हो कन्वेक्स लेंस के आगे, सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन जो उस ऑब्जेक्ट की रेज है वो पैरेलल चली जाएं, आप उस ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे.
एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको आपने लेंस के आगे इन फ्रंट रखना है। कहाँ रखेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज हैं वो पैरेलल चली जाएं? योर ऑब्जेक्ट विल बी लोकेटेड ऑन फर्स्ट फोकस। सो रेज फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इमेज फॉर्मेशंस होती हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में। ये हमारे पास 6 केसेस हैं कन्वेक्स लेंस के, यू आर फैमिलियर विद दीज। सो इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, क्योंकि एक ना एक इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में जरूर आ जाती है। सो इसमें कुछ लॉज ओबे होते हैं। लॉज क्या, सिंपल से लॉज हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर में से निकाल रहे हो, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन स्ट्रेट निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो लेंस के नॉर्मल एक्ट करती है। और हमने अभी भी पढ़े 2 नो रिफ्रैक्शन के केस, कि हमारी जो रे ऑफ लाइट है अगर सरफेस के नॉर्मली निकले तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। तो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है दैट इज नॉर्मल टू द लेंस, सो वो रिफ्रैक्ट नहीं करती एंड इट गोज स्ट्रेट। एंड मोर ओवर दिस रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। सो जहां पे ये 2 रेज आपकी मीट कर जाएंगी वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी। ये 6 केसेस में से हमारे पास 5 केसेस में रियल इमेज बन रही है, 2, 3, 4 and 5. Only this is the case when object is located between O and F. Virtual image is formed. Only in this case. Okay. So virtual image is formed in this case and हमेशा याद रखना real और inverted ये साथ साथ चलते हैं और virtual and erect ये साथ साथ चलेंगे। जब भी आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, जब भी आपकी इमेज रियल होगी इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। सो नाउ इमेज फॉर्मेशन थ्रू कनकेव लेंस। सो कनकेव लेंस के अंदर सिर्फ यही 2 केस बनते हैं। सो फर्स्ट केस इज द व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी। सो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लोकेट होता है तो आपकी जो रेज हैं वो अपीयर होती हैं सेकेंड फोकस पे मीट कर रही हुई, कि आपकी जो पैरेलल रेज हैं दे अपीयर्स टू मीट एट सेकेंड फोकस। और जो इमेज आपके पास क्रिएट होती हैं वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस क्रिएट होती हैं कनकेव लेंसेज के अंदर, चाहे केस कोई भी हो। अब अदर देन इन्फिनिटी अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी पड़ा है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी एंड वर्चुअल बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। ओके, सो दीज आर द केस। अब हम इनको कहाँ यूज करते हैं वो देखते हैं। These are the characteristic image formation table for the convex lens first. अब सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं जब हमारी ऑब्जेक्ट की लोकेशन थी इन्फिनिटी। सो लोकेशन ऑफ इमेज वाज फोकस, नेक्स्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, और यू कैन से दैट बियॉन्ड 2f, बोथ आर द सेम थिंग्स। सो इमेज कहाँ बनेगी? f एंड 2f ऑन द अदर साइड बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी 2f के ऊपर ऑन अदर साइड। ओके, अब जब आपका ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में प्लेस है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f ऑन द अदर साइड। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट f पे पड़ा है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे पड़ेगी। जब आपका ऑब्जेक्ट f एंड o के बीच में पड़ा है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ा है लेंस के उसी तरफ बनेगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि केसेस, इन सब केसेस की नेचर क्या रहेगी इमेज की। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ एक ही केस है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, दैट इज बिटवीन f एंड o। रेस्ट ऑल द केसेस हैव इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। बाकी सभी केसेस में जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इन सभी इंडिविजुअल केसेस की एप्लीकेशन के बारे में। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट लोकेट होता है इन्फिनिटी के ऊपर और इमेज बन रही होती है फोकस के ऊपर, हम इस केस को कहाँ यूज करते हैं? इस केस को हम यूज करते हैं जनरली एज अ बर्निंग लेंस। सो कैसे? अगर आप
सन रेज को कन्वेक्स लेंस की हेल्प से एक पेपर के ऊपर फोकस करो, तो जिस पॉइंट के ऊपर आपकी रेज फोकस हो रही होती है आपका पेपर उस लोकेशन से बर्न कर जाता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे वुड को भी बर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस बाय फोकसिंग द सन रेज। सो दिस सिचुएशन हैज मेड द लेंस एज बर्निंग लेंस, ओके। सो इन द सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड 2f, सो दिस सिचुएशन इज यूज इन कैमरा लेंस। कैमरा के अंदर आप देखते ही हो, अगर आप अपने फोन के कैमरा में फोटो खींचते हो तो आपके फोन के कैमरा के 2f से भी काफी दूर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस होता है या कोई पर्सन खड़ा होता है जिसकी आप फोटोग्राफ लेते हो। सो दिस टाइप ऑफ केस इज यूज इन कैमरा लेंस। अब उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा होता है तो ये केस कहाँ यूज होता है? वेयर इज दिस केस यूज्ड व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 2f? दिस काइंड ऑफ केस इज यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, okay, and when your object is located between f and 2f, where does you use this type of case is used in projector lens। जो आपने देखा होगा आपके क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं या सिनेमा हॉल्स में जब मूवी देखते जाते हो, वहां जो प्रोजेक्टर्स काम कर रहे हैं वो इसी फिनोमिना के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है और उसकी इमेज बन रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये केस कहाँ यूज हो रहा है? ये केस यूज हो रहा है कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर में, ओके। जब आपका ऑब्जेक्ट एफ एंड ओ के बीच में पड़ा है, दिस काइंड ऑफ केस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग लेंस, ओके। सो नाउ लेट्स प्रोसीडिंग टू द अगेन नेक्स्ट टेबल फॉर द कनकेव लेंस। अब जो लोकेशन है मेरे ऑब्जेक्ट की, अगर वो इन्फिनिटी है तो लोकेशन ऑफ इमेज होएगी सेकंड फोकस, ठीक है। और अगर कोई भी अदर लोकेशन हो एक्सेप्ट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन एफ एंड ओ ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ठीक है। और नेचर क्या होगी? नेचर होगी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों केसेस में जो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और जो फर्स्ट केस है उसको हम यूज करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर, और जो सेकंड केस है इन्फिनिटी वाला उसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट मायोपिया ऑफ अ पर्सन। मायोपिया क्या होता है? इसमें हम फार थिंग्स नहीं देख सकते, ठीक है। मायोपिया के अंदर हम फार थिंग्स नहीं देख सकते। जैसे आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको स्पेक्स लगी होगी, दे आर नॉट एबल टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट दे आर एबल टू सी देयर नोटबुक क्लियरली। तो उस केस में क्या होगा? दो स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, तो उसकी करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? सो बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स ऑफ कनकेव लेंस वी कैन करेक्ट मायोपिया। सो दिस केस इज यूज्ड इन दैट वे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ द इमेज विल शिफ्ट इफ वी मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लेके आ रहा हूं तो मेरा जो इमेज है वो अवे फ्रॉम लेंस आएगा या टुवर्ड्स लेंस आएगा, वो हम देख रहे हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कन्वेक्स लेंस की। देखिए दिस इज माय कन्वेक्स लेंस। अब देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो आपकी इमेज क्या बन रही है? फोकस पे बन रही है। जब आप उसको इन्फिनिटी से थोड़ा आगे ले आए और 2f के पीछे ले आए, इमेज का शिफ्ट होगी बिटवीन f एंड 2f, फोकस से आगे चली गई। जब आप 2f पे ले आए, इमेज उससे भी आगे चली गई, 2f पे इमेज बन रही है। फर्दर अगर आपने डिस्टेंस और कम कर दिया, यू आर रीचिंग बिटवीन 2f एंड f, तो इमेज कहाँ चली गई? 2f से पीछे चली गई। और जब आप f पे ले आए, इमेज इन्फिनिटी पे चली गई। एंड जब आप ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में ले आए तो जो इमेज है दैट बिकम्स वर्चुअल इमेज और ऑन द सेम साइड, और ये भी दूर चली गई, ओके। अब क्या है, देखो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट लेंस के पास लेके आ रहे हो, जो आपकी इमेज है वो अवे शिफ्ट हो रही है। इन कन्वेक्स लेंस image moves away from lens as you bring object close to lens, ठीक है। और concave lens के अंदर क्या होगा? What will be the case of concave lens in the same process?
जब कनकेव लेंस के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाएंगे तो इमेज कैसे शिफ्ट होगी। देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा था तो आपकी इमेज कहाँ बन रही थी, आपकी इमेज बन रही थी फोकस के ऊपर। जैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट को पास ले आए थोड़ा सा लेंस के, मीन्स योर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एनी अदर लोकेशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो क्या हुआ, जो आपकी इमेज है वो फोकस से लेंस की ओर शिफ्ट हो गई। तो मतलब जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जाएंगे आपकी इमेज भी लेंस के पास जाती जाएगी। सो इन कनकेव लेंस if you move object towards lens, image also moves towards lens। ठीक है, कनकेव के अंदर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, कन्वेक्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। अब उसके बाद हम बताएंगे whether the size of image increase or decrease if we move the object। फर्स्ट केस हम देखेंगे कन्वेक्स का। अब कन्वेक्स के अंदर चलते हैं वापस इमेज फॉर्मेशंस में। देखिए यहाँ पे जो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो आपके पास जो इमेज बन रही है वो बन रही है पॉइंट साइज। आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए तो क्या हुआ, इमेज पॉइंट साइज से थोड़ी बड़ी बनी। अब थोड़ा और पास ले आए तो इमेज का साइज थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और पास ले आए और बड़ा हो गया, और पास ले आए और बड़ा हो गया। इन्फिनिटी पे जाएगा ना, इन्फिनिटी पे तो जब रेज मीट करेंगी तो गैप बिटवीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी मोर, सो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी देखो साइज बड़ा बन रहा है और बड़ा हो गया। अब देखिए क्लियरली इसमें हमें एक चीज क्लियर है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे लेंस के, सो इमेज साइज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो इमेज साइज इज इंक्रीजिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द कनकेव लेंस। अब कनकेव के ऊपर चलते हैं। देखिए पहले जो इमेज बनी थी वो बनी थी पॉइंट साइज। अब जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाए लेंस के तो क्या हुआ, इमेज का साइज बढ़ गया ना, अगेन द साइज ऑफ इमेज इज इंक्रीजिंग। जो साइज है इमेज का वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप लेंस के पास जाते जाएंगे। अब बारी आती है साइन कन्वेंशंस की। अब साइन कन्वेंशंस हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होती है फोकल लेंथ, जिसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ओ। एक होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से इंडिकेट करते हैं, फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं। तो अब साइन कन्वेंशंस क्या है, साइन कन्वेंशंस कुछ रूल्स हैं जो हमें बताएंगी कि आपको डिस्टेंसेस जो आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट के हैं फ्रॉम लेंस वो कैसे मेजर करने हैं। जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है कि जो भी आपको डिस्टेंसेस मेजर करने हैं शुड बी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। हमेशा जो डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो सेकंड आपकी है साइन कन्वेंशन, वो है इफ डिस्टेंसेस आर मेजर्ड in the direction of light, they are taken positive. If distances are measured against direction of light, if distances are measured against the direction of light, then they are taken negative। ठीक है, अब ये बात क्या हुई, मैं आपको एक इमेज फॉर्मेशन से समझाता हूं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए
अब मैं ये केस अपना एज्यूम कर लेता हूँ, फोर्थ वन। अब इसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें फोकल लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ओ, ये भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ये भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ये गैप सेम होगा दोनों साइड पे, ठीक है। अब ये है मेरी इमेज। अब फर्स्ट साइन कन्वेंशन हमें क्या कह रही है, फर्स्ट साइन कन्वेंशन हमें कह रही है इफ यू वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस, ये ओ से एथ के बीच का अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू विल स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आपका इनिशियल लोकेशन ये है। अगर इमेज तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तब भी आपका जो इनिशियल लोकेशन है वो ऑप्टिकल सेंटर है, आप ऑप्टिकल सेंटर से बी तक जाएंगे। अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तब भी आप ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक जाएंगे। सो अब ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो हमें कहां से पता चलेगी, ये जो ऊपर की रे है यहां से पता चलेगी। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। डायरेक्शन ऑफ लाइट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताइए, जब आप ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ गए थे, आप किस तरफ गए थे, आप लेफ्ट टू राइट गए थे या राइट टू लेफ्ट गए थे? लाइट की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और आप जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो मतलब आप अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हैं। तो मीन्स जो आपका u होगा वो नेगेटिव में होगा। यू विल इवेल्युएट दिस डिस्टेंस एज -u। अगर 4 सेंटीमीटर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो योर u विल बी -4 सेंटीमीटर्स। ओके, सो फोकल लेंथ जो आपने मेजर की लेंस की, हमेशा फोकल लेंथ हम उस फोकस से मेजर करेंगे, उस फोकस तक मेजर करेंगे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर जिस फोकस में से हमारी रे पास हो रही है। तो इन कन्वेक्स लेंस द रे इज पासिंग थ्रू दिस फोकस, सो माई फोकस इज टुवर्ड्स राइट। मीन्स अगर मुझे ऑप्टिकल सेंटर से चलना पड़े फोकस तक तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं और डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ मेरे पास, मैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहा हूं। तो अगर मेरी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सो माई फोकल लेंथ विल बी +10 सेंटीमीटर फॉर द कन्वेक्स लेंस। ओके, सो दिस विल बी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं इमेज की। व्हेन यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो उस केस के लिए क्या है, आप ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ जा रहे हैं। You are going from left to right, and when you are going from left to right, what you are doing? You are going in the direction of light. So automatically what is happening? The V which you are evaluating comes out to be positive. This V which you are evaluating comes out to be positive. अब साइन कन्वेंशन के अंदर एक चीज़ और है, जो भी डिस्टेंसेस आप प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे और जो भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। सो हेयर इन अपवर्ड डायरेक्शन you are measuring the height of object, and here in the downward direction you are measuring the height of image. So height of object will be taken as positive and height of image will be taken as negative. लेंस फार्मूला के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपके फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को इंटर रिलेट करता है. इट इज 1/f is equals to 1/v minus 1/u. So this formula is called lens formula and it is valid for both concave as well as convex lenses. And next, for the magnification of lens, magnifying power of lens means कि आपका lens एक ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है. So it is evaluated as height of image to the height of object, or the second formula is v/u. That is the ratio of distance of image to the distance of object. Next is dispersion. Dispersion is nothing but just a splitting of white light into 7 colors when it passes from prism. We all know. And white light when passes through prism, so it gives you 7 colors which are in the order VIB, GYOR. V is violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, orange and red. So the increasing order of wavelength is from 400 nanometers to 800 nanometers, approximately between 750 to 800 nanometers.
So red light is having maximum wavelength and violet light is having minimum wavelength. अब ये जो डिस्पर्जन होती है, डिस्पर्जन होने के बाद ये कलर्स प्रिज्म से जब निकलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बेंड होते हैं. एंड हाउ दैट बेंडिंग इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड. जो कलर सबसे कम बेंड होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और जो सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है उसकी स्पीड सबसे कम. So according to this, the red light is having maximum speed through prism and violet light is having minimum speed through prism. So that's all, students. This was our today's topic. So I hope today's concept is clear to you all. If you are having any query, you can mention that in comment section. So see you students again in the next video. Till then, God bless you all.